very good evening. Yes, very good evening. How are you all? Good, great going. So today we are back with a grammar class as promised. Every alternate days we'll have a grammar class, right? So what is a pronoun? Okay, I've already introduced you what is a pronoun when I did teach you about adjectives. If you all remember when we learned about adjectives, I did give you a short description about what is a pronoun. Isn't it? Yes, I hope you all remember it. So, but I'm just giving you a quick recap. Post that we will go detailedly into more about pronouns. All right. So, pronoun, it's instead of noun. Noun के बदले जो आता है उसी को ही हम बोलते हैं pronoun. Correct? Yes. If you have any doubts in between, you can definitely ask me in the chat box. I will be definitely answering it. All right. So, listen carefully. तो नाउन के बदले होता है अपना प्रोनाउन जो नाउन यानी संज्ञा होता है प्रोनाउन यानी सर्वनाम होता है ओके अभी नाउन आपके इसके लिए person animal place a name of any naming word like your desk this pen this board you me we all are noun okay anything you find around you is a noun to just make it easy a name of a person animal place thing even abstract nouns are there we will come to that but for now, try to understand it this way. So I've just given an example. Say I'm talking about Ram. Say here I'm talking about a cat. Say here I'm talking about Arunachal Pradesh. Here I'm talking about a book. Now, what can I use instead of this as a pronoun? Now, all this is noun. Fine, great. Now, instead of Ram, I have to use his gender. उसका gender क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, masculine gender or feminine gender, we have to know. Of course, Ram is the masculine gender. So you will definitely use Ram. If supposing here it was Sita or anything, Ramya or any name, which is a feminine gender, you will obviously use over here she. और यहाँ पर कैट यानी कि कैट को हम इट बोलेंगे अगर हमको उसका लिंग पता नहीं है फॉर ह्यूमन बींग्स यू विल नेवर यूज इट बिकॉज एज सुन एज यू सी अ ह्यूमन बींग यू विल डेफिनेटली कम टू नो वेदर इट इज अ ही और अ शी you will definitely come to know about the gender so you will not anytime refer human being as it never but over here for animals if we don't know the gender of that say मान लीजिए एक पक्षी है ना यहाँ पे आपका पक्षी है यहाँ पर ये है ना आसमान में उड़ रहा है सब ओके ये उड़ रहा है आसमान में क्या आप बता सकते हो कि मुझे ये पक्षी का जेंडर क्या है बता सकते हो क्या बच्चों आई कांट can you do it? No, I don't think I can do it. So when we don't know, we'll say it is a beautiful bird. It is flying high in the sky. Like that, you will either say bird or you will say either it, right? So when you know the gender of the animal, you can definitely use he or she, depending upon the gender of that cat or dog or whichever animal you're talking about. If you don't know, you can definitely use the pronoun it. But here, for human beings, you will never use it. Over here, place. It is a beautiful place. It is a clean place. Okay. The city is very clean. Over here, book for any non-living thing. Over here, though this is a living thing, you don't know the gender. That is why we are using it. Over here, these are non-living things. So you will use obviously it. तो ये सारे जो instead of noun, noun के बदले इस्तेमाल किया जा रहा है वो ही हम बोलते हैं प्रोनाउन तो यहाँ पे मैंने और भी उदाहरण लिख के रखे हैं देखिए जैसे कि राम और सीता दो लोग एक से अधिक लोग हो तो उनको हम दे करके बोलेंगे और यहाँ पे देखिए राम एंड आई यानी कि आप भी उसमें शामिल हो यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप और वॉट एवर इट इज देन यू विल से वी okay you will never interchange this if you are not a part of it you will always say they if you are a part of it you will say we clear is the pronoun clear now whatever over here I've written pronoun let me to show you with an example okay so whatever I have written over here just listen now these are all what they are called as subject pronoun now why ma'am they have subject pronoun we understand what is the subject pronoun for example now I'm saying over here we will first learn this way. Ram called Raj. Now, what is this? This is the subject.
Okay, subject. Okay, and this is the verb. Action is happening over here. Okay, and this is the, we are learning through subject, object, and verb. Okay. Now, over here, in your subject, either noun or pronoun can come. Even in the object, either noun or pronoun can come. Right. Now, here, Ram called Raj. Over here, both I have used only noun. Okay. तो यहां पर अभी राम के बदले मैं क्या बोल सकती हूँ प्रोनाउन में? अगर मुझे बोलना है प्रोनाउन में इसी सेंटेंस को, तो मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा? यहां पर राम के बदले ही लिखूंगी। ही कॉल्ड, अभी मान लीजिए ही कॉल्ड राज, मैंने लिखा। ओके, अभी यहां पे राज को भी मुझे प्रोनाउन में लिखना है, तो मैम आपने तो बोला नाम के बदले ही लिखो, तो नो, you will not write that. Instead of this, there is an object pronoun. What is it? There is an object pronoun. Object pronoun. You will not write this he over here. Okay? You will not write he. Now, what is that object pronoun is what we are going to see. So, you saw what are the subject pronouns he, she, it. I will be again giving you a detailed thing. But this is what the, you have to know what is an object pronoun, what is a subject pronoun for you to sort out this confusion. So, what we will write here, he called, what did you write? Him लिखोगे। मगर क्यों मिस यहाँ पर हिम कैसे मिस मेरे को मालूम करूं कि हिम कब लिखूं ही कब लिखूं? तो वो ही अब आज हम पढ़ने वाले हैं। Is it clear? Till now, so far, clear, clear. Please type in the chat box. If you have doubt, please ask me now itself. What is a pronoun? You know, it is used instead of a noun. Now, what is a subject pronoun? Object pronoun is what we are going to see. Is it clear? I hope it is clear. So let's, before we go to the object pronoun, let's understand more about the subject pronoun also. तो यहाँ पे, right, let's do this. He called Ram. Okay. He called Ram and Raj. So all this I'm saying about the, we are giving you examples about the, over here I'm talking about the subject pronoun. Here I'm talking about the object pronoun, but here I'm not using the object pronoun as of now because I'm telling you about the noun itself. Now you will see when I use object pronoun, what is the difference over here. Okay, clear? So let's see what is the subject pronoun and object pronoun. I hope this is clear. Now this sentence I will change and show to you as an object pronoun. Let's see now more detail. Right. So let's go to the subject pronoun and object. Subject pronoun and object pronoun. तो पहले हम देखेंगे क्या क्या होते हैं अब सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, उसके बाद में इस सेंटेंस पर आएंगे हम। ये देखिए अपना ही जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है, शी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, इट सब्जेक्ट प्रोनाउन है, दे ओके सब्जेक्ट प्रोनाउन है। भी अभी हमने देखा था कब दे यूज करोगे, जब आप उसमें शामिल नहीं हो, when you are not a part of it, you're talking about other people, you will use they. When you are a part of it, you will say we. Okay, and it also I have told you how to utilize it. When it's a human, you will not use it. Okay, then I, and over here you. So these all are the subject pronouns. What do I mean by subject pronoun? Means it will come in the beginning. Okay, because they are the performer of an action. कोई भी कार्य यहाँ पर कॉल्ड कौन बुला रहा है? ये जो ही जो है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे राज है, मैं यहाँ पर ये, ओके, राज कॉल्ड राम, तो ये जो राज है ना यहाँ पर ये ही जो है परफॉर्म कर रहा है एक्शन, तो यहाँ पर राज के बदले ही मैंने यहाँ पर ही लिखा था। ओके, सो ही इज द परफॉर्मर। हु वाज दैट ही? Raj was that he. So Raj performed that action. On whom that action is going?
It is on Ram. So that is who Ram is the receiver of the action. Okay. Now what all can be the receiving of the action? He क्या बन जाएगा बेटा? He क्या बन जाएगा जब वो रिसीव कर रहा है तो him बन जाएगा. ओके, him. उसके बाद में she क्या बनेगा बेटा? She, she will become her. It will be always it only. यहां पर भी सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट ही रहेगा. They will become them. We will become us. I will become me. You will become you only. It and you will not change whether it comes to a subject pronoun or object pronoun. So he becomes him, she becomes her, it becomes it only, they becomes them, we becomes us, I becomes me. Okay? Now, as of now, you understand this. Now, when it comes in the sentence, you will be able to do it more better. Now, he called, यहां पर जब राम के बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? राम के बदले या तो ही या तो हिम. अभी ये ही क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन है. और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. अभी आप बोलिए मुझे, यहां पे राम के बदले मैं ही बोल सकती हूँ या हिम बोल सकती हूँ, मगर राम कहां पर आया है? वेयर हैज ही कम? Where has he come? He's come in the object. Okay, so what should I use? What should I use? He or him? What should I use? When the he is, Ram is come, Ram is either he or him. Okay, what should I use? I will definitely use him because over here what has come? Ram. Ram क्या है? Object की जगह जगह में आया, तो obviously I will say he called him. Correct? Did you understand now? Is it clear? ओके तो यहां पर राज बन गया ही, क्योंकि राज क्या है? सब्जेक्ट के जगह में है. अभी राज के बारे में भी लिखेंगे. राज को हम ही भी बोल सकते हैं, हिम भी बोल सकते हैं, मगर राज के लिए हमने क्यों ही लिखा? क्योंकि राज कहाँ पे आया? सब्जेक्ट प्रोनाउन में आया है. ओके, और राम कहाँ पर था? हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में था. तो आपको और भी इजी करने के लिए यहां पर मैं लिख ही देती हूँ. राज कॉल्ड राम. ओके, तो राज कॉल्ड राम. तो यहां पर राज कहां पर है? ये एसवी वो पैटर्न में है. ये अपना राज कहां पर है? सब्जेक्ट के जगह पर है, तो इसीलिए मैंने राज को ही लिखा. और राम क्या है? कहां पर है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के जगह पे, इसीलिए मैंने हिम लिखा. ये आपको एमसीक्यूज में क्लियर क्लियर बता दिया ओपा ने. वेरी गुड. अब स्कूल के नाम से ओके, वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक. यस, इट्स वेरी क्लियर, राइट. सो ये ही हम अभी सेंटेंस में देखने वाले हैं बेटा. हम सब सब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन बदल बदल के देखने वाले हैं. ओके, राइट. So how here you are knowing Raj is a noun. Instead of noun, there is a pronoun. But what pronoun is it? It is the subject pronoun. Here also it's a noun. What? But instead of noun, what pronoun did I use? I used the object pronoun. Okay. You cannot do this ever. You cannot do यहाँ पर ही लिखोगे तो ये गलत होगा बेटा. कभी भी ये जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ऑब्जेक्ट के जगह पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में नहीं आएगा. वैसे ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वाले सब्जेक्ट में नहीं आएंगे. ओके बेटा, क्लियर है? यस, वेरी गुड. तो हम अभी और एग्जाम्पल्स के साथ चलेंगे. तो ये जो भी है यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है आपका एक्शंस परफॉर्म करते हैं. जो एक्शन ये परफॉर्म करते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन, वो रिसीव करते हैं आपके ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. डन, वेरी गुड. और आपको ऐसे ही ग्रामर क्लास चाहिए या अगला क्या चाहिए आपको? या आपको बुक का एक्सरसाइजेस चाहिए? क्या चाहिए आप मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि आई विल टेलर मेक द क्लास अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. आप एक टाइटल टॉपिक दो मुझे कि आपको वो चाहिए, तो जरूर आपका मैं वो टॉपिक लाऊंगी. ऑल राइट. नाउ लेट्स डू विद द अनदर जेंडर. ही कॉल्ड सीता. अभी सीता के बदले क्या है यहाँ पर? तो सीता के बदले हम क्या क्या लिख सकते हैं? शी लिख सकते हैं या हर लिख सकते हैं. अभी सीता कहाँ पर आई है? कहाँ पर आई है बोलिए? एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के यहाँ पे आई है. सो वील राइट ही कॉल्ड हर लिखूंगी. वेरी गुड. हो गया ना? यस. तो नेक्स्ट वी विल डू वन मोर थिंग. यहाँ पे ऐसे लिखेंगे.
ही कॉल्ड, अभी आप बताइए मुझे आंसर। सीता एंड राज, अभी मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट जेंडर लिखा है। सीता एक फेमिनाइन जेंडर है और राज एक मैस्कुलाइन जेंडर है। तो पहला आप सीता एंड राज आया तो उसको हम प्रोनाउन में क्या बदलेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या बदलेंगे आपको देखना है। क्या लिखेंगे, इसको हम दे लिखेंगे पहले तो। और दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, देम है। अभी इन दोनों में से चुनो। सो हाउ विल यू फाइंड आउट, अगर इसको प्रोनाउन में बदलने के लिए बोल रहे हैं तो पहले दो लोग, एक से अधिक लोग रह दो, उसका प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। ठीक है, तो दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है, देम है। अभी इन दोनों में से आपको कौन सा लिखोगे, ऑब्वियसली यू विल चूज ओनली दिस, बिकॉज यू विल नॉट राइट दे ओवर हियर, बिकॉज ये तो सब्जेक्ट है ना, ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, और ये तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है ना, तो यही यहाँ पर लिखेगा ना। तो ये यहाँ पे ही कॉल्ड देम, ही कॉल्ड दे नहीं करोगे आप। इज इट क्लियर? यस, आई होप इट्स क्लियर। सो लेट्स गो टू अनदर वन। ओके, ही कॉल्ड, यहाँ पे देखिए राज एंड आई, यहाँ पर भी एक नाम डालें। ठीक है, सीता लिखते हैं। तभी इसको हमको बदलना है, सब प्रोनाउन में बदलना है। तो सीता के बदले क्या लिखोगे, अभी मेरे को चैट बॉक्स में आप लिख के बताइए इस सेंटेंस का, चलिए बताओ, बराबर बताइए। सीता के बदले कौन प्रोनाउन आएगा? यस, वेरी गुड, शी आएगा। ये तो वर्ब सेम ही रहेगा, एक्शन वर्ड कॉल्ड। अभी राज के बदले राज एंड आई आ रहा है, तो राज एंड आई के बदले हम दो लिख सकते हैं, क्योंकि आप भी उसमें शामिल हो। तो मैंने क्या बोला आपको, आपको क्या बोला, आप वी लिखोगे। तो वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, यहाँ पर अस है। अभी इन दोनों में से कौन सा चुनोगे? यस, वेरी गुड, अस ही लिखोगे, है ना बेटा? तो अस। इज इट क्लियर? Yes, we will see one more examples and then we will move on to our MCQ. Okay, you all have to answer it very well because I'm again giving you different examples and I'm teaching you. Come on, let's do this. अभी हम एक एक ही इसमें दो सेंटेंस से पढ़ेंगे हम। I need help. Can you help? यहाँ पर क्या आएगा, आई के बदले क्या आएगा? आपकी बात हो रही है, तो आई के बदले क्या आ रहा है आप ही बताइए। ये मैं इट को हटा देती हूँ बेटा, इट और ये दोनों भी यहाँ पर आएंगे तो दोनों सेम ही आएगा, तो इजी होगा आपको। यहाँ पर अभी बोर्ड दिख रहा है ना आपको। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है, बोलो। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है? आई नीड हेल्प, कैन यू हेल्प, क्या आएगा? आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है, यहाँ पर मी है, तो यहाँ पे आई के बदले ये यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन में है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में है। ओके, अभी इसी को वापस मैं दूसरा लिख रही हूँ, देखिए, देखा, यहाँ पे शी लिखेंगे। शी नीड्स हेल्प, कैन यू हेल्प। अभी शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, क्लियर बताया है। शी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर है। शी नीड्स हेल्प, कैन यू हेल्प हर, शी नीड्स हेल्प, कैन यू हेल्प हर। तो यहाँ पर क्या है, आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन शी है, तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जा रहा है, वही शी यहाँ पर आपका हर बन जा रहा है। ओके, यस, वील ट्राई विथ वन मोर सेंटेंस। आप बताइए मुझे चैट बॉक्स में, वी नीड हेल्प, कैन यू हेल्प। यहाँ पर क्या आएगा, वी का क्या है, वी का कौन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वी का कौन है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वेरी गुड, अस, वेरी गुड। सो वी नीड हेल्प, कैन यू हेल्प अस। सो अंडरस्टूड, दिस इज योर subject pronoun. When you become as an object, when you come as an object, you will change. We becomes us, I becomes me, she becomes her, he becomes him. So that is the concept. Okay, we will learn one more pattern. We interchange the sentence and then we'll proceed to MCQ. Why I'm giving you various exercises so that you can understand this concept very well. Okay, now here मान लीजिए मैं लिख रही हूँ एक सेंटेंस, I like her.
अभी है ना, मुझे है ना इस हर को यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है। तो ये हर जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? बताओ मुझे। हर जब सब्जेक्ट बनेगा, उसका उल्टा बता रही हूँ। हर जब सब्जेक्ट में आएगा क्या बनेगा? शी बनेगा। वेरी गुड। शी लाइक्स। आई जब सब्जेक्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट में आएगा, क्या बन रहा है बेटा? क्या बन रहा है? मी। आई लाइक हर, शी लाइक्स मी। ओके, मुझे वो पसंद है, उसको मैं पसंद हूं। तो आपको ये इंग्लिश में बोलना आना चाहिए ना, तो उसका बोलना आने के लिए आपको पहला कौन सा प्रोनाउन कहाँ आना है मालूम होना है ना। बहुत लोग मी लाइक वेरी मच, मी लाइक फिश वेरी मच ऐसे बोलते हैं। ये गलत सेंटेंस है ना बेटा। यहाँ पर मी लाइक फिश वेरी मच नहीं हो सकता है। आई लाइक, क्योंकि मी क्या है आपका? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो ये गलत ही सेंटेंस होगा। तो इसी में मार खाते हैं अंग्रेजी बोलने में बहुत लोग। ओके, तो ये मी लाइक फिश वेरी मच ऐसा नहीं बोलने का। ओके, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसका भी मैं और एक करके दिखाती हूँ। वी लाइक देम। अभी मुझे ये देम बदलो और वी को। देम जब सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा? वी जब सब्जेक्ट में आएगा तो क्या बनेगा? बताइए मुझे, बताइए आप ही। देम जब सब्जेक्ट में आ रहा है तो क्या बन रहा है? दे भर रहा है। दे लाइक। यहाँ पर वी जब आ रहा है आपका ऑब्जेक्ट में, वी जब आ रहा है ऑब्जेक्ट में, क्या बन रहा है? अस। तो ये सिर्फ ही आपको रट्टा लगाना है कि ही को हिम बोलते हैं ऑब्जेक्ट में, शी को हर बोलते हैं, दे को देम, वी को अस, आई को मी। ये दोनों तो सेम ही है हर जगह पे। आई, इट और यू, ये जो इट और यू है। ओके, सो ये ओनली दीज 5 pairs you have to read. If you read these 5 pairs, you will never do the mistake of this subject and object pronoun. Is it clear? So I have prepared a small test on this. If you have understood the concept well, you will definitely answer the MCQs well. Okay. If you have any doubt, please ask me. If you want me to repeat, I will repeat again. तो अगली क्लास कक्षा में हम एमसीक्यू रख सकते हैं। अगर आपको रिपीट करना है तो आर टाइप कीजिए, सी क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। चलिए चलिए बताइए। ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर। राइट। ओके, आई एम प्रोसीडिंग टू द एमसीक्यू। एंड आपको ये क्लास चाहिए क्या? आपको लाइक को क्यों यहाँ पर शी आया तो लाइक्स बना, यहाँ पर तो आई आया तो आपने लाइक लिखा, मिस शी आया तो लाइक्स भी लिखा, वापस वी आया तो लाइक लिखा। क्यों मिस यहाँ पे एस क्यों डाला? अगर उसका क्लास चाहिए तो बताइए मुझे चैट बॉक्स में। ये जो है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा आपको। तो आपको अगर टेंस भी सीखना है तो बताइए, मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। All right. So let me proceed to the MCQs. चलिए अभी देखिए। ही हिट क्या आएगा बेटा? ऑप्शन में ए में हिम है, बी में ही है। कौन सा चुनोगे आप? ए ऑप्शन में हिम है, बी ऑप्शन में ही है। आपको दिख रहा है स्क्रीन, मुझे लग रहा है। शी हिट क्या आएगा? देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है आपका? चैट बॉक्स में आंसर टाइप कर दिया है। यस आई वॉन्ट करके, वेरी गुड, ही करके टाइप कर दिया है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर द फीडबैक। यस, हम जरूर आपको टेंस देंगे। सॉरी, हिम आएगा, ऑप्शन में हिम आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आपका आंसर देख के मैंने, बॉयज प्लेड विथ, बॉयज प्लेड विथ क्या आएगा? ये पिछला वाला वापस दिखाती हूँ, देखिए आप। शी हिट, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है बेटा, तो हिम आएगा। ही अगर सब्जेक्ट में आएगा तो ही आएगा। तो आपको हिम लिखना है यहाँ पर। हिम इज द राइट आंसर, राइट। लेट्स, बॉयज प्लेड विथ। तो बॉयज, यहाँ बॉयज जो है नाउन है, प्लेड विथ
अब देखिए क्या आएगा, शी आएगा कि हर आएगा। शी जो है आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो पक्का नहीं आएगा। तो बॉयज प्लेड, यहाँ पे एक लड़की दिख रही है, देखिए ये दोनों लड़के जो हैं उस लड़की के साथ खेल रहे थे, तो वो लड़की। वेरी गुड, आपने टाइप कर दिया है बी ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ थर्ड वन देखिए, व्हाट इज द व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे। दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है बेटा? दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? देम है कि अस है? वेरी गुड, देम बता दिया है कि बी जो है, अस जो है वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो देम ही दे का होता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ नाउन, द सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन, इसमें आपको नाउन क्या है? राम एंड आई जो है। अभी इसका सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है, ध्यान दीजिए। सब्जेक्ट प्रोनाउन पूछ रहे हैं आपसे, राम एंड आई का सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? इसमें आप भी शामिल हो तो क्या लिखोगे बेटा आप? यस, बी ऑप्शन लिखोगे, वी करके। ध्यान से सवाल देखिए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है करके आपको देखना है। वेरी गुड, आप आंसर्स बहुत बढ़िया से कर रहे हो। फिर अगला, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन। आपको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन, ये जो नाउन दिया गया है उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बताना है। राम, सीता एंड राज, राम, सीता और राज का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बताना है। वेरी गुड। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? दे है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? देम है। वेरी गुड, चैट बॉक्स में बता दिया है, देम है। वेरी गुड। फिर देखिए, अभी डैश फेड इट। अभी कहाँ पर डैश आया है? आपके सब्जेक्ट में, जो कि करता है, जो कि एक्शन कर रही है। तो ये जो लड़की है उसको हम शी भी बोल सकते हैं, हर भी बोल सकते हैं, मगर यहाँ पर कौन सा आएगा, शी आएगा कि हर आएगा? वेरी गुड, शी आएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसको बदली करके नहीं लिखना है हमको। वेरी गुड। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द प्रोनाउन आई? आई का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द प्रोनाउन आई? यस, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन है? यस, वेरी गुड, आई का क्या होता है? मी होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आंसर कर रहे हो चैट बॉक्स में आप लोग, बहुत बढ़िया। राम थैंक्ड राज, राम ने राज को थैंक किया। ओके, चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन राज। अभी राज का प्रोनाउन पूछा है आपसे, ध्यान दीजिए, राम का नहीं पूछा है। मैंने बहुत एग्जाम्पल से आपको समझाया है, ध्यान से सवाल पढ़िए। राज का प्रोनाउन पूछा है आपसे, तो क्या लिखोगे बेटा? राज कौन सा जगह पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पे आ रहा है। वेरी गुड, टाइप कर दिया आपने, हिम। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। सीता हेल्प्स राम एंड राज, अब ये सारे नाउन दिए गए हैं। अभी क्या सवाल पूछ रहे हैं इस सेंटेंस में? चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन सीता। सीता का प्रोनाउन चूज करने को बोल रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट में है। तो बताइए सीता का प्रोनाउन क्या चुनोगे आप? वेरी गुड, बता दिया चैट बॉक्स में शी करके। वेरी गुड। तो ऐसे सवाल ध्यान से पढ़िए, बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंस से मैंने कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस नहीं लिखे हैं। यहाँ पर देखिए, द डॉग चेस्ड डैश। अभी यहाँ पर जो है बिल्ली दिख रही है हमको, डॉग जो नाउन है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? आपको चूज द प्रोनाउन लिखा है, तो कौन सा चुनोगे बेटा? ये सवाल बड़ा थोड़ा ट्रिकी है। देखिए, बताइए क्या लिखोगे? यहाँ पे एक ही प्रोनाउन है, तो लोग चित्र देख के इमीडिएटली क्या करते हैं? कैट लिख देते हैं, डॉग चेज द कैट ना। अगर क्या सवाल पूछा है, ध्यान दीजिए। वेरी गुड, आपने चैट बॉक्स में टाइप कर दिया इट करके, वंडरफुल। तो चित्र देख के बहुत लोग क्या करते हैं? कैट करके लिख देते हैं, मगर सवाल नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको सवाल पढ़ना होता है। वेरी गुड। तो आज चैट बॉक्स पूरा मेरा भर गया है आपका आंसर से, बहुत सही से, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन हिम है, बाकी सब बराबर आपने आंसर किया है। वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत इंफॉर्मेटिव है, इंटरेस्टिंग रहा। तो आप इंटरेस्टिंग करके टाइप कर सकते हो, आई करके टाइप कर सकते हो, आई करके टाइप कर सकते हो। तो आज का आपका फोनिक्स
मैंने आपको बोला था हर बार एक फोनिक्स का कुछ सिखाऊंगी आपको मैं। तो फोनिक्स में एस एच जो साउंड है, इसको हम श करके पढ़ते हैं। क्या इंटरेस्टिंग बता दिया है, थैंक यू फॉर द फीडबैक। तो एस एच करके हम फोनिक्स में इसको दोनों साथ में मिलके श करके पढ़ते हैं। तो जब भी आप है ना एस और एच को साथ में देखोगे तो आप श करके पढ़ोगे। जैसे कि आप ऐसे हैं, ये क्या है? शॉप, शॉप। शिप, शिप। अगर आप इसको अलग अलग पढ़ोगे ना बेटा, गलत आएगा। देखिए मान लीजिए मैं इसको स, ह, सह, इप, सिप आ रहा है, सिप आ रहा है। ओके। तो ये अलग अलग नहीं पढ़ने का इनका साउंड जो है। तो जब कभी भी आप एस एच को आगे या पीछे, जैसे कि आपने इसमें देखा ब, ऐश, बैश। तो आप जब कभी भी आप श को आगे देख रहे हो पीछे देख रहे हो, हिंदी में जैसे हम इसको आधा श ऐसे लिखते हैं, इसी को ही पढ़ोगे। तो वेन एवर यू सी एस एच टूगेदर, यू शुड प्रोनाउंस दैट एज श, श नहीं बोलने का। श, श ऑप, श इप, शिप, ऐसे पढ़ोगे आप। तो आज का टिप फोनिक्स का एस एच वर्ड्स है। आपको याद रहेगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अंग्रेजी में ऐसे आपको साउंड्स होते हैं, फोनिक साउंड्स होते हैं, जो कि आपका ए को ए बोलते हैं, बी को ब बोलते हैं, सी को क बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है लास्ट क्लास में तो ये आज लिख लीजिए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में इजी हो जाए। अभी आपको मैट वर्ड लिखना है तो आप क्या लिखोगे? साउंड कहाँ आ रहा है? ये देखिए ए। और टी का क्या आ रहा है यहाँ पर? टी कहाँ पर है? यहाँ पे ट। तो एट ऐसे लिख सकते हो। आपको स्पेलिंग रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एम ए टी मैट करके। मैट, मैट। ओके। तो ये जो मैंने आज सिखाया था उसको डायग्राफ करके बोलते हैं। जो ये एस एच है वो डायग्राफ है। क्यों उसको डायग्राफ बोलते हैं? क्योंकि ये जो एस एच जो है, दो लेटर्स मिलके एक साउंड बना रहा है, तो इसको हम डायग्राफ बोलते हैं। ये सब जो है एक एक सिंगल साउंड है जो अभी मैंने लिख के रखे हैं। तो ये सिंगल साउंड्स अच्छी तरह आप याद कर लीजिए। तो मैं हर रोज एक एक क्लास में आपको ये डबल साउंड सिखाती जाऊंगी, ताकि आपको वर्ड्स पढ़ने में इजी हो जाए इंग्लिश। ऑल राइट, तो ये मैं अभी हटा सकती हूँ। हैव यू कॉपीड इट डाउन? इफ यस करके तो ये यस वाई करके टाइप कर दीजिए। यस। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।